नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में एक घायल समेत एक की मौत। दमन सरकारी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। वापी के एक कर्मचारी पर फायरिंग करने वाले दो आरोपी हुए गिरफ्तार। और मोबाइल चोरी के मामले में एक आरोपी दमन पुलिस के कब्जे में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो जाने की घटना प्रकाश में आई है। दमन के रिंगणवाड़ा क्षेत्र में बीती रात दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दरअसल रिंगणवाड़ा निवासी जगदीश राठौड़ के घर के पास गुरुवार रात को दो युवक घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस की धमकी देकर भगाया गया था, जिसके बाद यह दोनों ही युवक करीब 30 जितने अन्य कामड़ी पटेल के युवकों के साथ जगदीश राठौड़ के घर पहुंचे और इनोवा गाड़ी में सवार जगदीश राठौड़ की बेरहमी से पिटाई कर एवं गाड़ी की तोड़फोड़ कर वहां से फरार हो गए, जिसकी फरियाद जगदीश राठौड़ के भाई महेश राठौड़ द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है और घायल का इलाज वापी की हरिया अस्पताल में जारी है। रात्रे बे छोकरा आव्या ने लोग पूछ्યું કે ભાઈ રાત્રે શું કરાય તો કંઈ બોલ્યા નહીં, તો ભાઈ જતા રહો નહીં તો પોલીસ બોલાવશું એમ કીધું। એ લોકો જતા રહ્યા। પછી 25-30 માણસનું ટોળું આવ્યું ને મારા ભાઈને મારીને ગાડીમાંથી કાઢીને ગાડી ભાંગી ને મરેલી હાલતમાં જો ફેંકીને ચાલી ગઈ। પછી મેં એને હાફ પેન્ટ પર ચડ્ડી પર જ મારા ભાઈને ગાડી લઈને ભગાવીને મેં દમણ પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયો। ત્યાં પોલીસને જણાવ્યું તો પોલીસે 108 બોલાવી અને હરિયા હોસ્પિટલમાં મોકલી। લોકો કામડી હતા, એ એકનો હર્ષિલ અશોક કામડી, સુકા મંગુ કામડી, એનો નાનો ભાઈ સુકાનો કપિલ મંગુ કામડી ને મયુર। બાકી વખતે કારનો એક્સિડન્ટ થયેલો છે મને નહીં ખબર। મરી ગયો ખરો છે, હું કેવી રીતે મરી ગયો મને નથી ખબર। કોઈ જાતની એ લોકો જોડે મારી બચ્ચે મારા ભાઈને गाड़ी पर सड़गाई गया, कौन सड़गाई गયું એ તેના આ રાત્રે આ બનાવ બનાવી ગયો છે। वहीं सामने वाले युवकों के मुताबिक बीती रात विपुल कामली और जय कामली नामक दो युवक रिंगणवाड़ा क्षेत्र में गए थे, जहां पर जगदीश राठौड़ द्वारा विपुल कामली के साथ हाथापाई की गई थी, जिसके चलते विपुल और जय के साथ अन्य सभी युवक जब जगदीश राठौड़ के घर पहुंचे तब वह घर पर मौजूद न होने की बात कही गई। हालांकि इसी बीच इनोवा में बैठे जगदीश राठौड़ ने विपुल कामली के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इन युवकों का कहना है कि जगदीश राठौड़ द्वारा यह एक सोची समझी साजिश रची गई थी। જેમાં વિપુલ છે ને, મેં એક અમારી ગામમાં મરી ગયેલો હતા બેસમાં બેસેલા હતા, તેના ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો। રીંગણવાડા મહિયાવાંશી ફળિયાથી એના ફ્રેન્ડનો ડિપેન્ડ કર્યો। એણે કહ્યું કે તમે અહીં આવો, વિપુલને બોલાવ્યો, બીજા ફ્રેન્ડ આવેલા છે એને મળવા માટે। એ ગયો ને રિટર્ન થતો હતો તો જગદીશ ભીખુ રાઠોડ એણે પકડીને કહે છે હું કરા આમ છે તેમ છે ને બે ઝાપટ આપી દીધા એને। બે જણા હતા, એક બીજો જય કામલી કરનાર હતો એને બી। પછી એ લોકોએ આવીને અમને કીધું, અમે ત્યાં બધા બેસેલા, એ બધા ગયા ઘરે, એની ઘરે ગયા જગદીશની ઘરે। તો એનો ભાઈ મહેશ ભીખુ રાઠોડ એ હતો, એ બહાર નીકળ્યો ને એની મિસિસ નીકળી, એના છોકરા નીકળ્યા। પછી એ તો ઘરે નથી, આમ છે તેમ છે કરવા લાગ્યા, આમ છે તેમ છે। પછી એ ગાડીમાં જ બેસેલો હતો ઇનોવામાં DD030042માં। એ ગાડીમાં બેસેલો, અમે પછી જોયું એ ગાડી સ્ટાર્ટ કરીને ડાયરેક્ટ વિપુલ ઉપર પ્લાનિંગ જ હતું એનું ફૂલ્લી। એકવાર ચડાવ્યું ઉપર, પાછું રેસમાં ચડાવ્યું ને આ મર્ડર કરી લાગ્યું। અગાઉ કઈ અમારો કઈ ના થાય, કોઈ ઝઘડો નથી, કઈ નથી, વિધાઉટ રીઝન કોઈ અમારે એના હાથે કઈ લેવા દેવા જ નથી। એટલે માથાભારે તત્વ છે એવું છે? હા, માથાભારે તત્વ છે। પોલીસને શું એ લોકો અમે તો કરી છે। અમારો ફ્રેન્ડ એ તો નિર્દોષ, એકદમ નિર્દોષ ને 18 વર્ષનો છોકરો હોય, એ બિચારો ફ્રેન્ડને મળવા ગયેલો, તેમાં 2-3 ઠાપટ મારીને ગુપ્તી બતાવી એણે કે
તમને માર નાખું, આમ કરું તેમ કરું, એટલે આવીને અમને કીધું. અમે તો જઈને એ કર્યું તો મહેશ રાઠોડ કંઈ ઘરે નહીં મળે એમ કે, ઘરે નહીં મળે એમ કે, ને એ ગાડીમાં બેસેલો હતો એટલે એનો પ્લાન એમ. એટલે અમે પાછા ઘેર આવવા નહીં કર્યા રિટર્ન, એટલે પહેલાં એ ગાડી ચડાવી દીધી ને પાછી રિવર્સ મારીને પાછી ચડાવી દીધી. એટલે અમારો વિપુલભાઈ ડેથ થઈ ગયો. એટલે હત્યા જ કરવામાં આવી છે. હત્યા જ અનિકેત છે એ લોકો. પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ ગયો. હા, નહીં ખોટી રીતે દાખલ થઈ ગયેલો છે દાખલ. ને અમને વાત મળી કે ગાડી भी એને પોતે તોડ નાખેલી છે કે આ બધા તોડી ગયા એમ કરીને. ऐसे में युवक के परिजनों ने भी जगदीश के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है, जिसके आधार पर शुक्रवार की सुबह दमन पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके की बारीकी से जांच की गई ताकि कोई पुख्ता सबूत मिल सके. बहरहाल दमन पुलिस इस मामले के तहत अधिक जांच पड़ताल में जुट गई है. नानी दमन एरिया में एक वारदात हुई है जिसमें पता चला है कि जो मायावंशी फड़िया है वहाँ पर एक विपुल नाम का लड़का था जो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर कुछ एक दोस्त को मिलने के लिए गया था. उसी टाइम पे वहाँ जगदीश उर्फ जगला नाम का एक लड़के ने उनको कुछ पूछताछ की कि यहाँ पर क्या घूम रहे वगैरह वगैरह, और उसी के दौरान दोनों को कहासुनी हो गई. और उसके बाद विपुल के गांव वाले भी कुछ लोग वहाँ पर आ गए और आपस में दोनों की कुछ कहासुनी होने के बाद ऐसा पता चला है कि जगदीश ने अपनी इनोवा गाड़ी से विपुल के ऊपर टच करके उसको नीचे गिरा के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. उसके बाद उसको हॉस्पिटल हरिया हॉस्पिटल वापस ले जाया गया विपुल को, और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है. और उसके बाद पुलिस ने इसके पिताजी की कंप्लेन ली है और आगे कार्यवाही जारी है. दमन सरकारी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर भूप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है. दमन पुलिस थाने में सरकारी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर भूप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है. सरकारी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डीसी अग्रवाल ने 1 मार्च को दमन एसपी इस सिंगल के समक्ष लिखित में शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई है. बता दें कि दमन सरकारी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर एवं पूर्व प्राचार्य भूप सिंह ने पिछली तारीख 21 दिसंबर 2015 को लैंड लेवलिंग एंड फिलिंग वर्क सरकारी कॉलेज का टेंडर जारी किया और टेंडर में गड़बड़ी करते हुए भूप सिंह ने उसे अपने साले सतेंद्र कुमार की एसए कॉरपोरेशन कंपनी को सौंपा था, लेकिन बिना कोई कार्य किए ही 4,96,000 रुपए का चेक जारी कर टेंडर का पूरा पेमेंट सरकारी धन से कर दिया गया. ऐसे में भूप सिंह द्वारा सरकारी पद एवं पैसों का दुरुपयोग तथा सरकार के साथ ठगी करने के तहत दमन पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है और मामले की जांच एसडीपीओ कर रहे हैं. गई तारीख 1/3/2016 को हमें गवर्नमेंट कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डीसी अग्रवाल ने एसपी श्री इस सिंगल साहब दमन को एक लिखित में कंप्लेन दिया था. जो कंप्लेन मुझे दी गई प्राथमिक इंक्वायरी के लिए, उस इंक्वायरी के दरमियान जांच में ये पता चला कि दमन कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भूप सिंह ने अपने कार्यकाल के दरमियान दिसंबर महीने में एक लैंड लेवलिंग एवं फिलिंग का काम टेंडर नोटिस करके निकाला था, और वो अवैध तरीके से अपने साले सतेंद्र कुमार के नाम से टेंडर अप्रूव किया था, और वह काम फिर हुआ नहीं और बाद में चेक भी रिलीज़ कर दिया गया. तो इसी मामले की हमको रिटर्न कंप्लेंट मिलते ही हमने मामले की जांच पड़ताल करके उन पे एफआईआर दर्ज की है नानी दमन थाने में. एफआईआर का नंबर 29/2016 अंडर सेक्शन 409, 420, 434, 34 आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक कानून के सेक्शन 31B, 31C2 एवं 31(2) के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच एसडीपीओ दमन कर रहे हैं. चेक का अमाउंट कितना था? कुछ 4,96,000. अभी जांच चल रही है, आगे की कार्यवाही एसडीपीओ दमन साहब देख रहे हैं.
वापी में एयरटेल के कर्मचारी पर हुए फायरिंग की साजिश रचने वाले 2 आरोपी को एलसीबी टीम द्वारा गिरफ्तार कर वापी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 13/2/2016 शनिवार के दिन वापी स्थित राजहंस कॉम्प्लेक्स में आई एयरटेल ऑफिस में 4 अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिस बात की रिपोर्ट वापी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिस पश्चात इस घटना पर एलसीबी टीम द्वारा छानबीन जारी था, जिस दौरान एयरटेल ऑफिस में नौकरी कर चुके सूरज नामक व्यक्ति एवं उसके मित्र मनोज से शंकास्पद पूछताछ की जा रही थी, जहां दोनों व्यक्तियों द्वारा गुनाह को कबूल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों आरोपी एवं इनके साथ एक और अज्ञात युवक द्वारा मिलकर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी, जिसमें 4 अन्य आरोपियों को मुंबई एवं यूपी से फायरिंग हेतु बुलाया गया था एवं घटना को अंजाम देने के तुरंत पश्चात सभी 4 को वापस भेज दिया गया। फिलहाल साजिश रचयिता दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वापी जीआईडीसी पुलिस में दंड संहिता धारा के तहत मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की छानबीन जारी है। गई तारीख 13/2/2016 रोज वापी 4 रस्ता પાસે આવેલ પંચરત્ન કોમ્પ્લેક્સમાં એરટેલની ઓફિસમાં 4 ઇસમોએ ફાયરિંગ કરી અને લૂંટનો પ્રયાસ કરેલો, જે ગુનો વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલો અને તેની તપાસ એસપી સાહેબે અમને આપેલી। તપાસ દરમિયાન એલસીબીના કોન્સ્ટેબલ અલારફુને એક બાતમી હકીકત મળેલી કે આ ઓફિસમાં અગાઉ કામ કરી ગયેલા એક સુરજ નામના છોકરાએ આ કામ કરાવેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે। જે હકીકત આધારે સૂરજની તપાસ કરતાં એ મળી આવેલું અને એની પૂછપરછ દરમિયાન તેણે કબૂલ કરેલું કે આ બનાવનું પ્લાનિંગ તેણે કરેલું છે અને તેની મદદમાં વાપીમાં જ રહેતો એક બીજો મનોજ કરીને છોકરો છે, તેણે તેની મદદ કરી અને યુપી અને મુંબઈથી માણસો બોલાવી અને આ કામ કરાવેલું હોવાનું તેણે જણાવેલું, જે આધારે મનોજની પણ ધરપકડ કરી છે અને ગઈકાલે તેમના 7 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે અને બાકીના જે 4 યુપીના માણસો છે જેમણે ફાયરિંગ કર્યું છે તેમની તપાસ ચાલુ છે। ટોટલ 7 આરોપીઓ છે, તેમાંથી 2 આરોપી પકડાઈ ગયા છે। હાલ જે પકડાઈ ગયા છે એમાં સુરજ છે તેણે ટીપ આપી છે અને મનોજે માણસો બોલાવી અને આ કામ કરાવેલું છે। મનોજ તે દિવસે બાઇક લઈ અને મનોજ અને એની સાથે બીજો એક જુવેનાઇલ આરોપી છે જેણે બાઇક લઈ અને આ 4 જણાને બનાવવાળી જગ્યાએ પહોંચાડવાનું અને બનાવ બન્યા બાદ વલસાડ રેલવે સ્ટેશન સુધી મૂકવા જવાનું કામ મનોજે અને બીજા એક જુવેનાઇલ આરોપીએ કરેલું છે। ક્યાં હાથમાં આવેલું એ લોકોને જે ફાયરિંગ બાદ તેમને જે ફરિયાદી છે એમના 2 મોબાઈલ જગ્યા ઉપર હાજર હતા, એ મોબાઈલ એમણે સ્થળ ઉપરથી લઈ લીધેલા, એ સિવાય બીજું કંઈ એમના હાથમાં આવેલું નથી। ફાયરિંગનું એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર કારણ નથી, પણ જે યુપીથી જે આવેલા હતા તેમાંથી એક કિસમ જે નામ આપેલું છે એ નવો જ હતો અને એને ફાયરિંગનો બહુ અનુભવ નહીં હોવાનું બધા લોકોએ જણાવ્યું છે। તો હવે એનું फायरिंग શું કામ કર્યું એવું ચોક્કસ કારણ તો આરોપી જ્યારે પકડાશે। दमन पुलिस ने मोबाइल छीनकर भागने वाले एक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है। संघ प्रदेश दमन के सोमनाथ विस्तार में पिछले दिनों एक युवक द्वारा मोबाइल छीनकर भागने का मामला सामने आया था। दरअसल खारीवाड़ निवासी धीरज राजपूत द्वारा पिछली 1 फरवरी के दिन नानी दमन पुलिस थाने में मोबाइल चोरी का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस के मुताबिक फरियादी धीरज सोमनाथ की सेलो जनरेशन कंपनी से सोमनाथ जंक्शन की ओर जा रहा था। इसी दौरान सोमनाथ मंदिर के निकट ही बाइक सवार 2 युवक उसके पास मौजूद 19,500 रुपए का सैमसंग मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ऐसे में पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल ट्रेस करते हुए आरोपी जयसिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जो वापी डुंगरा कॉलोनी का निवासी बताया गया है। लिहाजा दमन पुलिस इस मामले के तहत अधिक कार्यवाही में जुट गई है। 1/2/2016 को एक हमारे पास नानी दमन थाने में कंप्लेन आई थी। उस कंप्लेनर का नाम धीरज देवीलाल राजपूत था। तो उन्होंने बताया कि सोमनाथ डाबेल एरिया में मैं जब मोबाइल पे बात करते हुए जा रहा था तो उसी टाइम पे किसी अननोन बाइक वाले ने मेरा मोबाइल छीन के भाग गया लेके। तो उसके तहत हमने आईपीसी 356 और 379 के तहत आईपीसी के तहत केस दर्ज किया
और उसके बाद तहकीकात करते हुए हमें सफलता मिली है एक्यूज को पकड़ने में और मोबाइल भी बरामद हुआ है वापी से और आगे की कार्यवाही चालू है। वापी के बिलाखिया ग्राउंड पर गुजरात पुलिस द्वारा सभी पुलिस कर्मियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। गुजरात पुलिस द्वारा गुजरात के विभिन्न शहरों में पुलिस जवानों के लिए एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार के दिन वापी के बिलाखिया ग्राउंड पर भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा रूरल पुलिस एवं वापी रेलवे पुलिस के बीच मैच खेला गया। इस मैच में दोनों टीमों ने अपना 100% देते हुए मैच को जीतने का पूरा प्रयास किया। इसी के साथ इस मैच के दौरान दोनों टीमों का उत्साह देखते ही बनता था। जहां खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया, वहीं दर्शकों ने भी क्रिकेट का जमकर लुत्फ उठाया। लिहाजा क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक के साथ ही दोनों टीमों के सहयोग से क्रिकेट टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न की गई। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होना है। दिल्ली में 11 मार्च से 13 मार्च तक आर्ट ऑफ लिविंग का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव विवादों में है। विवाद यमुना के किनारे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर है और यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास है। इसके बावजूद इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि 1000 एकड़ में कार्यक्रम स्थल है। 24 देशों के 34,000 कलाकार और करीबन 35 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता दिया गया है। फिलहाल एनजीटी ने अभी तक इस कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाया है और इस पर सुनवाई चल रही है। अमेरिकी धार्मिक आयोग को भारत दौरे के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चर्चा करने और इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत यात्रा पर आने वाले एक अमेरिकी आयोग को भारत सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। UNCIRF के 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के सरकारी अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए 1 हफ्ते की भारत यात्रा पर आना चाहता था, जिसकी यात्रा आज से शुरू होनी थी। रंगीला एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने 9 साल छोटे बिजनेसमैन से शादी रचाई है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के बाद अब उर्मिला मातोंडकर ने शादी रचा ली है। गुरुवार के दिन कश्मीर के बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर से उर्मिला ने शादी की। बता दें कि मोहसिन अख्तर मॉडल भी रह चुके हैं। शादी की इस सेरेमनी को काफी प्राइवेट रखा गया। 42 साल की उर्मिला ने खुद से 9 साल छोटे मोहसिन से शादी की है। उर्मिला ने कहा कि उनकी फैमिली चाहती थी कि इस शादी को कम लोग तक सीमित रखा जाए, इसलिए सिर्फ परिवार और दोस्तों को ही बुलाया था। JNU सुपरहिट स्पीच के लिए अभिनेता KRK कन्हैया को 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार ने जेल से छूटने के बाद JNU में गुरुवार रात लंबा भाषण दिया। अपने भाषण में कन्हैया ने कहा कि उसे देश की समस्याओं, भूखमरी, भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए। कन्हैया के इस भाषण की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित कई बड़े नेताओं ने कन्हैया को हीरो बताया है। कन्हैया के इसी भाषण को लेकर बॉलीवुड अभिनेता KRK ने भी ट्वीट किया है। अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर विवादों में रहने वाले KRK ने कहा कि वो कन्हैया को इस शानदार स्पीच के लिए 2 लाख रुपए इनाम के रूप में देंगे। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में 1 घायल समेत 1 की मौत। दमन सरकारी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। वापी के एक कर्मचारी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार।
और मोबाइल चोरी के मामले में एक आरोपी दमन पुलिस के कब्जे में। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।